हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटे ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਨਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਨਰਾ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਯੈਸ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਬਟੇਨ ਕਰਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਥੀਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੁਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਊ ਦ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਕਰਸ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਹੋਣਗੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕਿੰਗਡਮ ਮੋਨਰਾ ਅੰਡਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਨਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਫ ਵਿਦ ਦੀਸ 3 ਟॉपिक्स ਟੁਡੇ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੈਕਚਰ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ 3 ਟॉपिक ਚੋਂ ਫਸਟ ਟॉपिक ਚੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਨਰਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਨਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਮੋਨਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇਇੰਗ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦੈਮ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੋਨਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एनवायरनमेंट है उवें दा ही फूड बनाना शुरू कर देंगे हैं। ठीक है, तो ब्रॉड कैटेगरीज अगर आप देखिए, ब्रॉडली अगर आप देखिए बेटे, तो आप बैक्टीरियल न्यूट्रिशन नू 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, what we have is the autotrophic mode of nutrition and we have is the heterotrophic mode of nutrition। ठीक है, autotrophs and heterotrophs। ऑटोट्रॉफ्स अपन नूं पता है, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब की हुंदा है? वो जीव जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करन, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स लाइक अस। आप तो डिपेंडेंट है ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर आवर फूड। ठीक है, कुछ एवें ना सोचियो भी आप तो अपना फूड आपे बना रहे हैं करें, दैट इज़ नॉट सो। आप बेसिकली रॉ मटीरियल नहीं तो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फॉर आवर फूड। येस और नो? यस। ठीक है, तो अपने को क्या आ गया, किंगडम मोनरा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू the mode of nutrition in kingdom monera is further divided into autotrophic mode of nutrition and we have is the heterotrophic mode of nutrition। clear? autotrophic ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ further 2 ਦੇ ਅੰਦਰ divide ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। further
फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक मीनस अगर लाइट प्रेजेंट है, जिवें आप प्लांट्स च पढ़ते हैं लाइट प्रेजेंट है, लाइट की प्रेजेंस के अंदर प्लांट के सैल्स की करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेंदे हैं, वाटर लेंदे हैं, सनलाइट लेंदे हैं, तो एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। ये सारिया चीज़ां मिलके जिवें तुसीं अपनी क्लास 10th के अंदर या लोअर क्लासिस च पढ़ के फोटोसिंथेसिस किवें हुंदी है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आया, सनलाइट प्रेजेंट है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है, दे विल कंबाइन एंड फॉर्म द फूड इन द बॉडी ऑफ द प्लांट्स। सिमिलरली अगर लाइट है तो ये भी फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, मतलब अपना फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अपने आप सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। तो नैक्सट अपने को ये अंदर आ गया बेटे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो कहते हैं कि हाँ अगर बई सनलाइट नहीं अवेलेबल, असी एवें दी जगह ते हाँ जिथे सानू सनलाइट ही नहीं मिल रही, दैन असी जो भी उत्थे कैमिकल प्रेजेंट है उन्होंने यूज़ करके असी अपना फूड प्रिपेयर करांगे, ठीक है। कीमो मतलब बाय द यूज ऑफ द केमिकल्स, कीमो ऑटो मीन्स सेल्फ, सिंथ कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक, ट्रॉफिक मतलब फूड बनाना, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर। तो अपने को देखो फोटो सिंथेटिक के अंदर फोटो जिहड़ा अपने पहले डिस्कस किया फोटो ऑटोट्रॉफ्स, तो आप जनरल है, मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रही हाँ, यूकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरियल प्लांट सैल के अंदर की हुंदा है, यूकैरियोट्स के अंदर की हुंदा है, जो फोटो ऑटो आप प्लांट्स नूं भी तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स कह दिंदे आ। वो की करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज द सिंबल ऑफ सनलाइट लैम्डा, ठीक है। फिर नीचे अपने को आया उन्होंने को क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तुसीं पता नहीं किहड़ी क्लास तो ये रिएक्शन करनी शुरू करती सी, है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इन्हें की किया बई इन्हें तो जी अपना C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाया, तो ऑक्सीजन है जी वो नेचर च लिबरेट होगी। तो इस तरह की रिएक्शन जिदे अंदर ऑक्सीजन नेचर च लिबरेट हो जाए, जेड़े ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन नू लिबरेट करते हैं, इनू कहते ऑक्सीजीनिक, ऑक्सीजीनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीजीनिक, क्लियर। हुण अपने को आ गया बेटे कि जेडे बैक्टीरियाज हुंदे ने ना, क्योंकि उन्हां कोल वाटर जिहड़ा है वो वाटर नू उन्ना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जिन्ना कि प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्लियर। तो आप बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इन प्रोकैरियोट्स ये की करते हैं, इन्हां दे कोल क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट हुंदा, क्लोरोफिल की जगह ते इन्हां दे कोल बैक्टीरियल पिगमेंट्स प्रेजेंट हुंदियां ने, ठीक है। बैक्टीरियल पिगमेंट्स हो गया जिमें कि बैक्टीरियोवर्डिन है, वन इज, एंड वी हैव इज द बैक्टीरियोपरप्यूरिन, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगी, द बैक्टीरियल पिगमेंट्स अगर फोटोसिंथेसिस करनी है तो बैक्टीरिया के अंदर पिगमेंट्स होनी चाहिए ने। वन नेम इज बैक्टीरियोविरिडिन, ठीक है। सेकेंड इज बैक्टीरियोपरप्यूरिन, क्लियर। जिमें दा बैक्टीरिया उहदे अंदर ये पिगमेंट्स होणगियां, हुण वो पिगमेंट्स की प्रेजेंस के अंदर की करता है, सेम कार्बन डाइऑक्साइड नेचर चो लऊगा प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड लैंदा, तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ पिगमेंट्स ने इस नूं ब्रेक ਇਹਦੇ ਚੋਂ देखो वाटर का काम की हुंदा है फोटोसिंथेसिस के अंदर, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर है जिहड़ा वो अपने इलैक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अपने कोल सेम वे दे अंदर इत्थे भी वो जिहड़ा अपने कोल प्रोटॉन गिविंग सोर्स है, इलैक्ट्रॉन गिविंग सोर्स है, वो हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो नाउ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S, ठीक है। हुण की होया, आ पिगमेंट प्रेजेंट है, आ ऊपर सेम है, सनलाइट आ रही है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल की जगह ते इत्थे क्लोरोफिल की जगह ते इत्थे की प्रेजेंट है, ना दोनों चो कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट है, जिहड़े टाइप का बैक्टीरिया है उवें दा पिगमेंट होगा। एग्जाम्पल अपने को आ गया जिमें कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर केड़ी प्रेजेंट हुंदी है, बैक्टीरियोपरप्यूरिन प्रेजेंट हुंदी है, ते ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोविरिडिन प्रेजेंट हुंदी है, इनू बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी कहा जाता है, क्लियर। दिस इज ऑल्सो नोन एज द बैक्टीरियल क्लोरोफिल।
ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਓਵਿਰਡਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਓਪਰਪਿਊਰਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਲਫਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨ ਆਕਸੀਜਨਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਐਨ मतलब विदाउट ऑक्सीजनिक रिएक्शन। क्लियर है बेटा जी? तो अपने को एक चीज़ क्लीयर होगी कि बैक्टीरियाज ने जेड़े वो की कर सकते हैं, वो दो तरीके दे नाल अपना फूड ऑबटेन कर सकते हैं। मतलब प्रोकैरियोट्स ने जेड़े वो दो तरीके दे नाल अपना फूड ऑबटेन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मैथड दे नाल ਤੇ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆਪੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹਾਂ, ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਮੋ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹਾਂ। ਫੋਟੋ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਚਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। H2S ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਪਲ ਸਲਫਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਕਟੀਰੀਓਪਰਪਿਊਰਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਪਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਸਲਫਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਕਟੀਰੀਓਵਿਰਿਡਿਨ, ਮਤਲਬ ਪਰਪਲ है तो परप्यूरिन, ग्रीन है तो विरिडिन पिगमेंट प्रेजेंट है, तो वो आ रिएक्शन नु कैरी आउट करा देंदा है। क्लियर है? ओके, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक। लाइट नु यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜੇ ਕੀਮੋ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਪਲ ਸਲਫਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦ green sulfur bacteria, purple sulfur bacteria, and the second example is green sulfur bacteria. Am I okay with this? Clear? Second is chemical chemoautotrophic. अगर chemicals available ने, ठीक है, like example we have is the chemosynthetic autotrophic bacteria, ठीक है। हुन अगर ता बैक्टीरिया नू नेचर दे अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल है, अपने नाइट्रोजन अवेलेबल है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਈ ਆ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ we can say chemicals present ਨੇ, not the pigments, chemicals present ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ chemicals ਨੂੰ utilize ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ food prepare करे। such a kind of the bacteria are called as chemoautotrophic bacteria। क्लियर है? हुन देखो, हुन अपने को है अगर ता ओहो नाइट्रोजन नु एज ए कैमिकल यूज कर रहा है तो उन्होंने आपां कहांगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अगर वो आयरन नु यूज कर रहा है तो उन्होंने आपां कहांगे आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, आयरन बैक्टीरिया। अगर वो थर्ड केस के अंदर अगर वो अपने कोल केड़ा यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, तो आप उन्होंने कहांगे हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। क्लियर? तो अपने कोल आ गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वी हैव इज द हाइड्रोजन बैक्टीरिया एंड वी हैव इज द आयरन बैक्टीरिया, ठीक है। आयरन के अंदर एग्जाम्पल है जिमें कि वी हैव इज द फेरोबैसिलस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया। ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟਰੀਫਾइंग बैक्टीरियाज ने बेटे ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, नेचर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है ਉਹਨੂੰ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? तो अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। क्लियर? तो दीज आर द these are the methods of chemoautotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन नो यूज कर लो,
ਆਇਰਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਸੱਚ ਕਾइंड ऑफ द ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मतलब लाइट, कीमो मतलब कैमिकल्स। क्लियर? सिंपल मैथड। हेटरोट्रॉफिक मैथड किहड़ा हुंदा बेटे, जो दूसरे दे उपर डिपेंडेंट आपां, ठीक है, आपां दूसरे दे उपरों दी अपना न्यूट्रिशन ऑबटेन कर रहे हैं, जिवें आपां ऑबटेन कर रहे हैं, आपां प्लांट्स तो अपना न्यूट्रिशन लै रहे हैं, तो वी आर हेटरोट्रॉफिक। तो बैक्टीरिया दे अंदर भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिहड़ा वो देखण नूं मिलदा है। ठीक है? तो हेटरो ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर अपने को की आ जाता है बेटे, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। ठीक है? तीन तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है ये अंदर। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड वी हैव इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड वी हैव इज द symbiotic mode of nutrition. सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक, ये तुसी क्लास 10th च भी पढ़िया होया है। सैप्रोफिटिक की हुंदा है, जदों बैक्टीरिया गले सड़े समान तो अपना फूड ऑबटेन करन, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इज अ एग्जाम्पल ऑफ सूडोमोनास पुटीडा, इनू सुपर बग भी कहते हैं। एग्जाम्पल इज ए सिंथेटिक बैक्टीरिया, इनू तैयार किया गया है। एग्जाम्पल इज सूडोमोनास प्यूटीडा, ऑल्सो नोन एज सुपर बग, कि जिथे गंद ज़्यादा होगा ना, गंदगी नू क्लीन करन लई ये बैक्टीरियाज यूज़ करे जाते, क्योंकि ये की करते हैं, ये उन्होंने खाना शुरू कर देंगे, उहदे तो अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देंगे। द बैक्टीरिया विच आर डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिकेइंग फॉर द ऑबटेनमेंट ऑफ देयर न्यूट्रिशन। देखो, अगर नेचर के अंदर सैप्रोफाइट्स ना हो ना, तो जो भी गंदगी है, डेड बॉडीज़ ने, वो एज इट इज़ पईयां रहनगियां, तो ਜਿਹੜੇ जिंदा लोग ने उन्होंने भी सर्वाइव करना औखा हो जाऊगा। ठीक है? तो सैप्रोफाइट्स नूं आपां नेचर्स स्क्वेंजर्स भी कहने। स्क्वेंजर्स मतलब बचाने वाले, ठीक है, नेचर नूं बचाने वाले, रक्षक कह लो। ठीक है? तो दे आर सच काइंड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो अर्थ तो बैड सबसटेंसिस नूं रिमूव करन च भी हेल्प करे, क्योंकि उन्होंने खा जाते, उन्होंने जो न्यूट्रिशन ले लेंगे। ठीक है? तो दैट इज सैप्रोफिटिक। व्हेन अ बैक्टीरिया ऑबटेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड एज द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दैट कम्स अंडर द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Am I okay? Next is parasitic mode of nutrition. Now what is parasitic mode of nutrition? When a bacteria goes inside the body of the host and causes the diseases, such a kind of bacteria is called as parasitic. For example, देखो किन्ने सारे ने, सैल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड कॉज करता है ह्यूमन नूं, है ना। हुण आपां ने क्या जिहड़ा है, वी हैव इज द बहुत सारिया एग्जाम्पल्स ने बैक्टीरियाज ने जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है? तो मैं एक एग्जाम्पल दी, सैल्मोनेला टाइफी आ गया, वी हैव इज द। इस तो बाद अपने को देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द पैरासिटिक बैक्टीरिया। ठीक है? उस तो बाद आ जाओ बेटे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया किहड़े ने, जिहड़े किसी होर दे नाल एसोसीएशन बना के रहणगे, उन्हां नूं आपां कहने आ सिम्बायोटिक। जिवें कि राइजोबियम आपां बचपन तो ही पढ़ते आ रहे हैं, इहदे अंदर एग्जाम्पल लिख लो बेटे, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है? ओके, तो दैट इज द एग्जाम्पल। उस तो बाद आ जाओ सिम्बायोटिक दे अंदर एग्जाम्पल लिख लो, राइजोबियम। राइजोबियम जो कि किदे नाल रहिंदा एसोसीएशन च, सिम्बायोटिक, जिवें आपां लाइकेंस पढ़े सी, एक दूजे दे नाल एसोसीएशन च रहना। तां ये राइजोबियम एवें दे बैक्टीरियाज ने जो नेचर च नाइट्रोजन नूं फिक्स करते हैं। ठीक है? किदे नाल रहिंदे, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट्स ने, लेग्यूमिनस दालों वाले पौधे, उन्होंने रूट्स च रहते हैं तो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इन्हों की मिलता है, इन्हों शैल्टर मिलता रहता है। ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक एसोसीएशन और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो किसी होर दे नाल एसोसीएशन च रहन। ठीक है? एंड
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि ਜਿਹੜੇ ਮੋਨਰਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਇਰਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਇਰਨ 'ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਵਾਓ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ এনवायरमेंट play a major role in this, ठीक है। तो उन्होंने अंदर उवें दा ही डेवलपमेंट हुंदा है, ओके। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जिहड़ी नाइट्रोजन फिक्सेशन दी पावर हुंदी है ना, वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स को लिए है। प्रोकैरियोट्स हैव ओनली दैट काइंड ऑफ द पावर इन नेचर, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दे आर सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू, ठीक है। तो अपने कोल इन नाइट्रोजन जिहड़ी है उन्होंने फिक्स कर दिया। तो क्लियर बेटे, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कीमोऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड वी हैव इज द फोटोऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट हाउ द मोनरन्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। मोनरा जिहड़ा है ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਡ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਾइंड ऑफ द फोटोऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर। नेक्स्ट है बेटे अपने को रेस्पिरेशन। दिस वाज अबाउट द न्यूट्रिशन इन द बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन इन द मोनरन्स, ठीक है, और रेस्पिरेशन इन द बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया एंड रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। फिर आप डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। Now we have is respiration in bacteria. Respiration. देखो respiration word का मतलब की है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ब्रीदिंग का मतलब तो हवा, मतलब ऑक्सीजन का अंदर जाना तो बाहर आना, वो ब्रीदिंग है। सिंपल। जो अपनी बॉडी के अंदर आप पढ़ांगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कि जो फिजिकल प्रोसेस हो रही है, बॉडी के अंदर जा रही है गैस, बाहर आ रही है, जा रही है आ रही है, दैट इज़ ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन की होंगे बेटे, रेस्पिरेशन होंगे कैमिकल प्रोसेस है जिहदे अंदर उस ऑक्सीजन नूं यूटिलाइज करके जो अंदर गई है, उस ऑक्सीजन नूं यूटिलाइज करके उसका फायदा की है, उन्होंने यूटिलाइज करके अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन किया जाए तो उहदे तो एनर्जी ऑब्टेन की जाए, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन अंदर गई, उन्होंने मैं कहा ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, वो ब्रीद आउट। पर बैक्टीरिया के अंदर तो सीधा ही चली जाती, उन्होंने कोल कोई लंग्स तो है नहीं, ऑक्सीजन अंदर चली गई, जो भी गैस थे वो डिपेंडेंट ने अंदर चली गई। क्लियर, एम आई ओके। अंदर गए, अंदर जाके ये ऑक्सीजन जो अपनी बॉडी च काम कर रही है उन्होंने भी तो वही काम करोगी ना। यानी कि रेस्पिरेशन की है केमिकल ब्रेकडाउन है, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। जो अपनी बॉडी छोड़ रहे मैं वो दस रही, ठीक है। तो दिस इज रेस्पिरेशन। हुंदा की है रेस्पिरेशन के अंदर, सब तो पहले ऑक्सीजन अपने हर सैल के कोल गई। मान लो एक सैल है, आप करांगे डिटेल च बेटे इनू प्लांट्स के अंदर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ांगे उदों मैं डिस्कस करूँगी। तो ऑक्सीजन अंदर गई, आ सैल है, आ ऑक्सीजन हर सैल के अंदर चली गई, मैं सिर्फ इको सैल बना रही हूँ। ये अंदर जाके की करती है, अपने सैल के साइटोप्लाज्म च ग्लूकोज पे है, ये उस ग्लूकोज नू ब्रेक कर देंदी है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। It breaks it down into the, not glycolysis, into the pyruvate। बड़ा सेल बना लेने बेटे, कुछ मुच हो जाऊगा फिर। आ एक सेल है, ऑक्सीजन अंदर आई, ਇਹਦਾ फायदा की है, एक ही करती है ग्लूकोज नू ब्रेक करती है पायरूवेट के अंदर। नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल की गल हो रही है, यूकैरियोटिक, आप ह्यूमन की एग्जाम्पल ले ली, ठीक है, यूकैरियोट के अंदर। क्लियर। पायरूवेट तुसी इन्ना ये सिर्फ समझना है, याद जो करना है ना मोनराज, वो भी मैं दसूंगी हुणे, जस्ट
ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਐਨਰਜੀ। ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ? ATP ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ATP ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ATP ਘੱਟ ਬਣਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ATP ਬਣਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੀ ਹੀ ਇਨਰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਆਊਟਰ ਐਂਡ ਇਨਰ। ਇਨਰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ATP ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ATP ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ATP ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਨੋਰਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਨੋਟ ਆਲ, ਸੇਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਟ ਜੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਉਹਨੂੰ ATP ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜ਼ ਆ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਵੀ work ਕਰਦਾ, that also works as a mitochondria in the body of the prokaryotic cells। clear? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਕਿ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ that acts as a mitochondria in the body of the prokaryotic cells। clear ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। clear? aerobic respiration and anaerobic respiration। clear है? जो ऑक्सीजन दी प्रेजेंस दे अंदर हो रही है that acts as a aerobic respiration which occurs in the presence of oxygen is called as aerobic। ठीक है, जिवें मैं हुणे किया ऑक्सीजन ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਕੋਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਤੇ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ATPs ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ एरोबिक प्रोसेस है। क्लियर? जो कि ऑक्सीजन दी प्रेजेंस दे अंदर हो रही है उन्होंने मैं कह रही हाँ कि वो मेरी केड़ी प्रोसेस है? एरोबिक प्रोसेस है। द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? एनएरोबिक और रेस्पिरेशन जिहदे लई ऑक्सीजन नहीं चाहिए, विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर इहदे अंदर किवें हुंदा जे ऑक्सीजन ही नहीं हैगी, दैन हाउ द ऑर्गेनिज्म विल सिंथेसाइज देयर ATPs। ठीक है, तो इहदे 3 टाइप्स हुंदे ने बेटे। ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस तो फर्स्ट प्रोसेस हुंदी है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ने तो ऑर्गेनिज्म विल गो फॉर द फर्मेंटेशन। ठीक है, जिमें वाइन इंडस्ट्री के अंदर है
ठीक है। तो जनरली कुछ बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस होंगी तो एक प्रोसैस करते फरमेंटेशन, यानी कि जो उन्होंने खान पीन के जो उन्होंने सराउंडिंग्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ने तो फरमेंटेशन करते हैं। फरमेंटेशन के अंदर वो की करते हैं, उस ग्लूकोज नू ब्रेक कर देंगे इंटू इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल C2H5OH ਦੇ ਅੰਦਰ ब्रेक कर देंगे है एंड एनर्जी है जी वो लिबरेट हो जाती। बेसिकली तो आपको एनर्जी ही चाहिए सी ना, ATP रिलीज हो जाती इन दी एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑर्गेनिज्म की करता है जो सराउंडिंग्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ने, शुगरस प्रेजेंट ने, उन्होंने ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अगर बैक्टीरिया दे कोल सराउंडिंग्स दे अंदर, सराउंडिंग्स मतलब वो बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन चल रही, अगर वो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट ने तो प्रोटीन्स नू बिना ऑक्सीजन तो ब्रेक कर रहा है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्यूट्रीफिकेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्यूट्रीफिकेशन। क्लियर। द थर्ड वन इज which we have is that is the decaying। decaying मतलब अगर कोई भी होर ਉਹਦੇ ਕੋਲ मटीरियल प्रेजेंट है अदर देन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई भी होर ऑर्गेनिक मटीरियल प्रेजेंट है, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ब्रेक कर रहा है टू रिलीज द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज decaying प्रोसेस। ठीक है, लो जी। तो अगर एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन च हो रहा है, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन च हो रहा है, इत्थे भी एनर्जी बनाना है, इत्थे भी एनर्जी बनाना है, इसका काम ये रेस्पिरेशन है। हुण अपने कोल बेटे कुछ होर टर्म्स ने रेस्पिरेशन के नाल ही रिलेटेड ने। ठीक है, तुहाडीआं बुक्स च भी दित्तियां हो सकदियां ने। तो वो टर्म्स जिहड़ियां ने बेटे वो अपने कोल की ने, वी हैव इज सम टर्म्स जिहदे अंदर है अपने कोल फर्स्ट टर्म है obligate aerobes and obligate anaerobes। word is obligate, obligate aerobes। second term है obligate anaerobes। रेस्पिरेशन के नाल ही रिलेटेड टर्म्स ने। obligate word का मतलब होंगे स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट कंडीशन। स्ट्रिक्ट कंडीशन का मतलब की है ऑब्लीगेट एरोब। एरोब का मतलब की है ऑक्सीजन, मतलब ऑर्गेनिज्म स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो ऑक्सीजन होगी तो वो साह लऊगा, अपनी एनर्जी बनाऊगा, नहीं तो वो अपनी एनर्जी नहीं बनाऊगा। स्ट्रिक्ट कंडीशन ऑब्लीगेट एरोब्स। ठीक है, मीन्स कंडीशन हैज़ टू बी देयर व्हेन the oxygen, which is the condition for the survival, oxygen has to be there for the survival of the organism। clear। obligate, obligate anaerobe। obligate anaerobe का मतलब की होंगे बेटे सेम कि absence of oxygen is must। strict condition, strict की है, स्ट्रिक्ट कंडीशन की है कि एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए है। मतलब इत्थे कंडीशन की है ऑक्सीजन मस्ट बी एबसेंट। जे ऑक्सीजन एबसेंट है तो वो अपनी प्रोसेस करूँगा, नहीं तो अपनी प्रोसेस नहीं करूँगा। ऑब्लीगेट। ठीक है, फिर आ गया फैकल्टेटिव एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये सियाने होंगे हैं। ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि अगर कंडीशन मिल गई तो भी ठीक है, नहीं तो असीं दूजे तरीके नाल भी काम चला लांगे। फैकल्टेटिव एरोब्स ए मतलब जिद्दी बच्चे ने दोनों ऊपर वाले, ये कहते हैं जे साडा जो कंडीशन है वो रिक्वायर्ड है वो फुलफिल हो रही है तो ही असीं काम करांगे, नहीं तो असीं काम नहीं करांगे। दूसरे सियाने बच्चे हैं। ठीक है, फैकल्टेटिव एरोब्स and facultative anaerobes। फैकल्टेटिव एरोब्स की कहते हैं बेटे वैसे तो वो एनारोबिक है। ठीक है, बट अगर उन्होंने कदे कदे ऑक्सीजन मिलती है तो भी वो काम चला लेंगे। ठीक है, फैकल्टेटिव एरोब्स कदे कदे ऑक्सीजन लेना फैकल्टेटिव। ठीक है, फैकल्टेटिव कदे कदे। दे आर एनारोबिक, दे आर anaerobic
but they can survive in oxygen also. ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम है, कम चलाना है, चला लांगे. फैकल्टेटिव एनारोब्स, दे आर एरोबिक, उल्टा लगा लो, वाइस वर्सा कर दो, दे आर एरोबिक. वैसे तो वो एरोबिक ने ऑक्सीजन चाहिए है, बट कदे कदे ਅਸੀਂ ऑक्सीजन ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਚ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ. ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ. दैट इज नोन एज द फैकल्टेटिव एनारोब्स. ठीक है, दैट इज फैकल्टेटिव एनारोब्स. क्लियर है बेटे? ठीक है. नाउ हुण बेटे अपने को नैक्सट आर्टिकल है जिहड़ा वो अपना है रीप्रोडक्शन. तो रीप्रोडक्शन आप वन शॉट च ही कर लांगे. ताई मैंने आज 3 आर्टिकल लिखे सी. मैं क्या सीगा कि अगर मैंने लग्या कि अपना, क्योंकि फिर मैंने फिर विच छड्डना पऊगा, तो आप वन शॉट च ही कर लांगे. आई कवर द रीप्रोडक्शन इन वन शॉट. ठीक है, तो मोनरा का वन पार्ट अपना कवर हो जाएगा. उस तो बाद छोटे छोटे आर्टिकल्स रह जाएंगे. कल पूरा हो जाएगा. छोटे छोटे आर्टिकल्स के अंदर आऊगा साइनोबैक्टीरिया आ जाऊगा, माइकोप्लाज्मा आ जाऊगा. वो आप प्रोबेबली एक क्लास च पूरा कर लांगे. प्रोबेबल है कि अपनी 2 क्लासेस मोनरा ते होल जाएंगियां. देन द मोनरा विल बी कंप्लीटेड. क्लियर? थैंक यू सो मच. अगर बेटे कोई डाउट हो, यू कैन ड्रॉप मी द मैसेज.